Hello dear student, today we will discuss electrophilic substitution reaction of phenol. Today we will discuss Reimer-Tiemann reaction. Reimer-Tiemann reaction is a chemical reaction used for the orthoformylation of phenol. It is simplest example being the conversion of phenol to salicyl aldehyde. तो आज हम राइमर-टाइमान रिएक्शन पढ़ेंगे जो एक प्रकार की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन के द्वारा फिनोल से सैलिसाइल एल्डेहाइड बनाया जाता है। ये रिएक्शन भी दो प्रकार की होती है, एक फॉर्माइलेशन के अंतर्गत आती है, एक आती है कार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत। फॉर्माइलेशन से एरोमेटिक एल्डेहाइड बनता है और कार्बोक्सिलेशन से एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फॉर्माइलेशन के अंतर्गत एल्डेहाइड ग्रुप बेंजीन रिंग पर अटैच्ड होता है और कार्बोक्सिलिक के अंतर्गत COOH कार्बोक्सिलिक ग्रुप अटैच्ड टू द बेंजीन रिंग। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट राइमर-टाइमान फॉर्माइलेशन रिएक्शन। सो राइमर-टाइमान रिएक्शन फॉर्माइलेशन। फॉर्माइलेशन तो सिंपल सी रिएक्शन ही है कि फिनोल रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म in the presence of aqueous NaOH over aqueous KOH in the presence of 340 Kelvin temperature to form orthohydroxybenzaldehyde and para-hydroxybenzaldehyde. para-hydroxybenzaldehyde और para-salicyl aldehyde. This is minor product, ये कम बनता है और ये है ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और दिस वन नोन एज ऑर्थोसैलिसाइल एल्डिहाइड। और ये है मेजर प्रोडक्ट। ऑर्थोसैलिसाइल एल्डेहाइड इट इज ए स्टेबल प्रोडक्ट because it has intramolecular hydrogen bonding. It has intramolecular hydrogen bonding. It is unstable due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. इसमें अंतराणु हाइड्रोजन बंध है, इसमें अंतर अणु हाइड्रोजन बंध है, तो ये ज्यादा स्टेबल है। तो इस प्रकार से फिनोल जो है वो एरोमेटिक सब्स्टिट्यूटेड एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। सो वी कैन से दैट द व्हेन फिनोल इज रिफ्लक्स्ड विद क्लोरोफॉर्म in the presence of aqueous NaOH at 340 Kelvin temperature followed by hydrolysis, an aldehyde group get introduced in the ring at the ortho and para position. So this process known as formylation
In this reaction, ortho product is a major product because due to the presence of intramolecular hydrogen bonding, and the para product is unstable due to the presence of intermolecular hydrogen bonding. The Reimer-Tiemann reaction involves electrophilic substitution reaction. In this case of electrophile, the dichlorocarbene and their general formula CCl2. It is a neutral electrophile. The carbon present in dichlorocarbene has sextate, hence act as a strong electrophile. This is generated by the reaction of chloroform and aqueous NaOH. तो ये रिएक्शन किस प्रकार से होती है, तो हम इसका मैकेनिज्म देखते हैं। तो और इसकी जो बाई प्रोडक्ट है ये वो होंगे 3 NaCl and 2 water molecule. So now मैकेनिज्म, तो फिनोल जो है वो एरोमेटिक एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। इसमें जो है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है, सो इट डू नॉट अंडरगो एसोसिएशन, इट हैज ये इस मॉलिक्यूल में ये जो है वो इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग है। ये जो बॉन्डिंग है ये है इंट्रा मोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंटर, और इसके अंदर है इंटरमोलिकुलर बॉन्डिंग। तो ये थी Reimer-Tiemann फॉर्माइलेशन रिएक्शन। अब इसका करते हैं मैकेनिज्म। सो लेट्स स्टार्ट मैकेनिज्म, दैट मीन्स क्रिया विधि। इससे सबसे पहले डीप्रोटोनेशन प्रोसेस होता है, जिसमें स्टेप फर्स्ट NaOH, aqueous NaOH, it dissociate Na plus or OH. So it is a base according to Arrhenius or act as a nucleophile. Second step, the nucleophile attack chloroform molecule. This is chloroform. In this reaction, it acts as weak acid and undergo deprotonation. ये प्रोटोन यूज करता है, ये इलेक्ट्रॉन इसकी ज्यादा, ये पॉजिटिव है प्लस, और ये इसको गेन कर लेता है, और ये प्रोसेस हो गया डी प्रोटोनेशन। रिजल्टिंग ट्राइक्लोरोकार्बेन हैज नेगेटिव चार्ज और वाटर मॉलिक्यूल। थर्ड स्टेप, ट्राइक्लोरोकार्बेन form dichlorocarbene after losing chloride ion. This ये है dichlorocarbene. It is a neutral
and act as a neutral electrophile. और इसका जो कार्बन है, द कार्बन ऑफ द डाइक्लोरोकार्बिन हैज सेक्सटेट, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, सो it act electrophile. Now on the other hand, the phenol in this reaction, phenol act as a weakly acid. It acts as a weak acid. It undergoes hydrolysis with aqueous NaOH to form sodium phenoxide, which is salt of phenol. It is stable due to the resonance. तो ये स्टेबल होता है, कारण है रिजोनेंस, क्योंकि जो फिनोक्साइड आयन है वो बहुत स्टेबल है. फिनोक्साइड आयन हैज नो चार्ज सेपरेशन एंड रिजल्टिंग H2. ये इसकी 4th स्टेप है. नाउ तो फिनोल कन्वर्ट फ्रॉम सोडियम फिनोक्साइड एंड dichlorocarbon is electrophile with attack on the ring. Now 5th step. Sodium phenoxide, it is a salt of phenol react with dichlorocarbon. ये डाइक्लोरोकार्बिन जो है it is न्यूट्रल, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कार्बन बेंजीन पर अटैक करता है. ये फिनोक्साइड जो है उसमें जो ये sp2 कार्बन, ये sp3 है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है और बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रोविटोविक ग्रुप है. सो दीज लोन पे इलेक्ट्रॉन आर एसोसिएटेड विद द रिंग एंड दिस और ये जैसे इलेक्ट्रॉन आते हैं ये इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए जाते हैं. Double bond is formed between the ring and oxygen, सोडियम या, और यहाँ पर इस प्रकार से डाइक्लोरोकार्बिन जो है वो जुड़ जाता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से सिंगल सिग्मा बॉन्ड बन जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लिए एक और नेगेटिव चार्ज, इसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर रहते हैं. दिस इज द 5th स्टेप. इसके बाद ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है ये फिनोल को वापस प्रोवाइड कर दी जाते हैं रिजोनेंस के द्वारा और ये इलेक्ट्रॉन वापस ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं. यहाँ से प्रोटॉन, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होते हैं तो यहाँ प्रोटॉन निकलता है, जो है वो प्रोटॉन क्यों मिलता है और ये प्रोटॉन जो है कि इस नेगेटिव चार्ज कार्बन पर जुड़ जाता है और ये इस प्रकार से बेंजीन अगेन एक्टिव फ्रॉम
इनएक्टिव पोजीशन पर इस पर नेगेटिव चार्ज वापस आ जाता है। ये पॉजिटिव और ये यहाँ पर CaCl2 बन जाता है। इट इज सब्स्टिट्यूटेड बेंजल क्लोराइड। और ये इंटरमीडिएट है, इट इज अनस्टेबल 6 पोजीशन। और यहां ये मॉलिक्यूल जो है undergoes हाइड्रोलाइसिस। इसका हाइड्रोलाइसिस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस NaOH। तो 2 क्लोरीन को रिप्लेस करने के लिए 2 NaOH रिक्वायर्ड होते हैं। यहाँ से टूटेगा माइनस प्लस 2 Na और 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, रिजल्टिंग 2 NaCl मॉलिक्यूल डिग्रेड। और इस प्रकार से ये इंटरमीडिएट कंपाउंड बनता है। इट इज अनस्टेबल बिकॉज ये प्रोडक्ट बनता है जो अनस्टेबल है, क्योंकि एक ही कार्बन पर 2 हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंटेनिंग ग्रुप लगे होते हैं, इसलिए अनस्टेबल है। और 7 पॉइंट सोडियम फिनॉक्साइड जो है ये स्टेबल होने के लिए इस प्रकार से बॉन्ड ब्रेक होता है। इसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये पास पॉजिटिव, इट गोट पास पॉजिटिव। सो ये इलेक्ट्रॉन ये जैसे ये हटता है यहाँ से OH रिमूव होगा, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता है और पॉजिटिव की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा हो जाएगी और ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाते हैं और इसके प्रोटॉन यहाँ से निकल जाता है। सो यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट हो जाता है और H3 में H2O और डबल बॉन्ड इज फॉर्म्ड और ये सोडियम फिनॉक्साइड आ गया। और उसके बाद यहाँ पर इसका हाइलाइट करते हैं डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में। HCl जो टूटेगा -5 प्लस में और इस प्रकार से ये सेलिसाइल एल्डेट बढ़ जाता है और यहाँ NaCl निकल जाता है। तो ये था ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड और ऑर्थोसेलिसाइल एल्डिहाइड। तो ये था मैकेनिज्म। अब इस रिएक्शन के अंदर टोटल 3 NaCl निकलते हैं और 2 वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं, एक H2 यहाँ पर है और एक H2 ऊपर का। सो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ डाइमर-डाइमर रिएक्शन of the formyl process. Now इसी प्रकार से यदि अपन क्लोरोफॉर्म के स्थान पर
क्लोरोफॉर्म के स्थान पर यदि हम कार्बन टेट्राक्लोराइड यूज कर लिया जाए तो सैलिसाइलिक एसिड बनता है। सो राइमर टाइमान कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन, ये भी राइमर-टाइमान फॉर्मेलेशन की तरह ही उसी क्रियाविधि से होती है, उसी मैकेनिज्म से होती है। नाउ द रिएक्शन phenol react with CCl4। राइमर-टाइमान फॉर्मेलेशन में यहाँ पर क्लोरोफॉर्म होता है, यहाँ पर कार्बोक्सिल में CCl4 रहते हैं। क्लोरोफॉर्म की जगह सेम प्रोसेस है, कास्टिक सोडा या NaOH या KOH ले सकते हैं। तो रिएक्शन होती है सेम टेम्परेचर 340 केल्विन और रिजल्टिंग फिनॉल और यहाँ जो है COOH ऑर्थो सैलिसाइलिक एसिड इस नाम से पॉपुलर है। और IPC का कोड देखें तो नाम होगा 2-हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड और 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड it is a major product due to the presence of intramolecular hydrogen bonding। और ये जो है ये पेरा सेम है, पेरा सैलिसाइलिक एसिड और IPC जो नेम होगा वो होगा या 4-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। ये माइनर प्रोडक्ट है, ये है मेजर प्रोडक्ट। इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इसका मैकेनिज्म भी इसमें 4 और इसके जो प्रोडक्ट होंगे वो 4NaCl और 2H2। तो ये थी राइमर-टाइमान कार्बोक्सिलेशन फिनॉल और इसका मैकेनिज्म भी सेम है, पर इतना सा अंतर है यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो ट्राइक्लोरोकार्बिन होता है। यहाँ पर जो होगा वो कौन होगा, ट्राइक्लोरोकार्बिन जो इलेक्ट्रोफाइल। तो इसका भी थोड़ा सा मैकेनिज्म देखें तो मैकेनिज्म क्रियाविधि तो सेम है। सबसे पहले फिनॉल रिएक्शन करता है NaOH, यहाँ पर वीकली एसिडिक होगा तो इट फॉर्म सोडियम फिनोक्साइड। It is the salt of phenol which react with carbon tetrachloride which generate CCl3 electrophile which attack ortho
position and form CCl3. CCl3 undergoes hydrolysis. So there are 3 molecule of NaOH. तो यहाँ 3 NaCl लिबरेट होते हैं and form intermediate compound ONA प्लस, आप चाहो तो गोला लगा सकते हो, और रिजल्टिंग CHOH, OH and OH ये बन जाता है ये, और दिस प्रोडक्ट is very unstable due to the presence of 3 hydroxy group at the single carbon atom, which makes it unstable. इस स्थिति में एक वाटर मॉलिक्यूल लिबरेट होता है, ये अनस्टेबल है, इट लूज 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और यहाँ पर बन जाता है COOH। इसके बाद इसका डाइल्यूट HCl की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, तो COOH और यहाँ एक मॉलिक्यूल NaCl लिबरेट। तो ये है लास्ट प्रोडक्ट, ऑर्थोसैलिसाइलिक एसिड। तो ये थी राइमर-टाइमर रिएक्शन, जो एक फॉर्माइलेशन के अंतर्गत आती है और एक कार्बोक्सिलेशन के अंतर्गत आती है। फॉर्माइलेशन में एल्डिहाइड ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के अंदर कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन पे जुड़ता है। फॉर्माइलेशन में डाइक्लोरोकार्बिन इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है और कार्बोक्सिलेशन के अंदर कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोफाइल की तरह व्यवहार करता है। इतना डिफरेंस। तो ये थी राइमर-टाइमर रिएक्शन। थैंक यू। आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू वेरी मच।